بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، اس وقت جنگ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ جنگ جہاں پر جا چکی ہے کہ واپسی کا راستہ اس وقت دکھائی نہیں دے رہا۔ بقا کی جنگ ہے، عمران خان کو گرانا ہے، راستے سے ہٹانا ہے۔ یہ ریاست نے چونکہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ جب تک عمران خان معافی یا سرنڈر نہیں کرتے تب تک یہ فیصلہ ہے کہ جناب آپ عمران خان کا کلا جو ہے اس کو کما کر دو، پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم پاکستان بنا دو۔ تو میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر جناب ہم نے بات کرنی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آج ایک پریس کانفرنس کی، وہ ایک پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے خلاف نہیں تھی بلکہ پورے کے پورے نظام کے خلاف تھی، جس میں انہوں نے عدلیہ کی بات کی، حکومت کی بات کی۔ وہ جناب بطور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ایسے جیسے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ آج پاکستان سے بات کر رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے فائنانس منسٹر آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے جناب آفٹر شاکس آنا شروع ہو چکے ہیں، عملی طور پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں جناب لے لیا گیا ہے۔ اور ایک پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو جواب اس وقت سامنے آیا ہے اس نے تو کھلا جنگ کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کا جواب کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، ایک خبر تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری جانب جناب آج حکومت لڑکھڑا گئی ہے۔ عمران خان کا خوف اس قدر جناب ان کو کھایا جا رہا ہے کہ کل کو عمران خان نے آ جانا ہے، اس نے ہمیں جناب الٹا لٹکا دینا ہے۔ تو آج حکومت لڑکھڑا گئی ہے اور ایک بہت بڑا یوں ٹرن آج ان کو لینا پڑا ہے۔ عمران خان سے باقاعدہ ان لوگوں نے معافیاں مانگنا جناب شروع کر دیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارے خلاف کچھ نہیں کر رہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اور اہم خبریں رکھتا ہوں، پھر من خبروں کی جانب ہم بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جاتے ہیں عمران خان کے خلاف گواہی دینے، لیکن وہ گواہی عمران خان کے خلاف دینی تھی، وہ گواہی دے بیٹھے اپنے ہی جناب نظام کے خلاف، تو وہاں سے جو ہے وہ پورے کا پورا کیس بگڑتا ہے۔ اب عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں پرویز خٹک نے عدالت میں دیے گئے بیان میں ترمیم کی درخواست دائر کر دی ہے۔ جو انہوں نے عدالت میں بیان دیا، جو انہوں نے پولیس کے سامنے بیان دیا، انویسٹیگیشن کے سامنے بیان دیا، وہ بالکل مختلف تھا، وہ میچ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ عدالت جا رہے ہیں کہ جناب میرے بیان کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی جائے۔ تو احتساب عدالت میں جمع کروائے نئے بیان میں پرویز خٹک نے کہا کہ عمران خان کے اصرار پر کابینہ نے بغیر پڑھے اور اضافی جھنڈے کی منظوری دی ہے، اس پر اسکینڈل پر بات اور بحث کرنے سے منع کیا۔ اور پرویز خٹک کے مطابق عمران خان نے بند لفافے کے جھنڈے پر منظوری کے لیے اصرار کیا تھا، لیکن جو انہوں نے نیب میں 2023 میں بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے حوالے سے بتایا تھا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھجوائی گئی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی، اور شہزاد اکبر نے بتایا کہ پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا اور ان کو اضافی جھنڈے کے طور پر جو ہے وہ جناب سامنے لایا گیا۔ اور ایک میٹنگ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بغیر بتائے میٹنگ کر لی، ایک میٹنگ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بغیر بتائے میٹنگ نہیں کی، تو یہاں پر جو ہے وہ جناب پکڑے جاتے ہیں۔ اور پھر عطا ترڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو پریزیڈنشیل سویٹس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج اس کے اوپر اپنا بیان دیا ہے۔ خان صاحب نے جناب کہا کہ عطا ترڑ کا دعویٰ ہے کہ میں جیل کے وی آئی پی کمرے میں ہوں، اگر یہ سچ بول رہا ہے تو آ کر مجھ سے ملے، میڈیا 2 منٹ کے لیے اگر میرے کمرے کا دورہ کرے، ڈیتھ سیل اور دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار ملزمان کے سیل کی دیواریں میرے کمرے کے ساتھ ہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عطا ترڑ جائیں، کیمرہ لے کر جائیں، بتائیں کہ عمران خان صاحب کس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پوری طرح سے بے نقاب ہو جائے گی۔ جو عمران خان صاحب انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ اور پھر تیسرا خان صاحب نے کہا کہ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جو ریاست بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان سرنڈر کر دے، صرف یہ کہہ دے کہ نو میں نے کیا تھا، ہم عمران خان کو معاف کرتے ہیں۔ ہاں صاحب کہہ رہے کہ جناب میں نے یہ کام نہیں کیا، میں آپ کو کون سی آپ سے معافی مانگوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب معافی کے موڈ میں نہیں ہیں، وہ اس وقت جنگ کے موڈ میں ہیں۔ اور پھر آج فیصل بڑا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے دعویٰ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پھر 9 مئی کی ڈگر پر چل پڑی ہے۔ وہ بیانات سلوگن وہی نعرے بازی ہو رہی ہے، یہ چیز قابل اطلاق نہیں لگ رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر گھڑی ہو گئی، اگر آئین کھیلنا ہے تو پھر صاحب آئین ہی کھیلیں۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جب سے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت خطرناک ہو گئی ہے، اور یہ چیز
चीज़ एप्लीकेबल नहीं लग रही। आइन में 3 दिन में लिखा है कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं है, तशरीह 15 दिन की आ जाती है, और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी गई है। जो हेड है वो अभी हेड नहीं है क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुआ। यानी कि फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं वो ये रियासत का बयानी आपके सामने रख रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट का बयानी आपके सामने रख रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जनाब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपके सामने 1 बाय 1 आज रख दी हैं जो खबरें थी, लेकिन अब जो अहम तरीन खबरें हैं उसकी जानिब आज जनाब बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो हुकूमत जनाब लड़खड़ा गई है और इमरान खान से बाकायदा तौर पर माफ़ियाँ मांगी जा रही कि खुदा का वास्ता जो है वो हमें जनाब आप माफ़ कर दें, हम आपसे लड़ाई के काबिल नहीं हैं और ना हम आपसे लड़ाई जो है वो करना चाहते हैं। आज DCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वही 9 मई का बयानिया, इमरान खान को सियासी बलवाई, उसकी जमात को दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द कहा गया, गैर कानूनी माफिया कहा गया, सियासी माफिया कहा गया। इस तरह के अल्फाज आज उन्होंने इस्तेमाल किए जो कि शायद उनको जेब नहीं देता था, क्योंकि एक इदारा है, एक इदारे का वकार है, ये फौज भी मारी है, ये मुल्क भी मारा है। हम अपनी फौज से प्यार करते हैं, हमारी अपनी फौज से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि फौज होगी तो मुल्क होगा। लेकिन आप जब एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फिर तो सवाल बनेगा, फिर सवाल होगा भी, कौम आपसे पूछेगी भी, क्योंकि इदारा जो है वो कोई मुक़द्दस गाय तो नहीं है। हम सवाल तो कर सकते हैं आइन के अंदर रहकर, तमीज़ के दायरे में रहकर। तो जनाब मैं जो खबर आपको देने जा रहा हूँ वो खबर बड़ी आम है। खबर यह है कि कल वफाकी काबीना का एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया शहबाज शरीफ की जानिब से, जिसमें इमरान खान पर आर्टिकल 6 यानी कि डायरेक्ट फांसी का केस और PTA के ऊपर पाबंदी लगाने के मामले पर वफाकी काबीना से मंजूरी ली जानी थी। जैसे ही DCI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले फैसला हो जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म होती है, एक खबर अचानक से सर्कुलेट होती है कि शहबाज शरीफ ने जो काबीना की मीटिंग बुलाई थी कल, उसको जनाब मुलतवी कर दिया, कल मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत जनाब लड़खड़ा गई है, क्योंकि आज जो DCI SPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो बेसिकली इमरान खान को पैगाम नहीं है। इमरान खान को क्या लगे, ये तो उनके लिए मजाक बन गया कि आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आए रोज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, आए रोज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, तो खान के लिए तो ये मजाक है। अब इमरान खान साहब जो हैं शायद वो इसको लाइटली ले रहे हैं आज, या PTA इसको लाइटली ले रही है, लेकिन हुकूमत के लिए जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, आई ओपनर है कि आज अदलिया को भी पैगाम दिया गया, अदलिया के लिए आई ओपनर है, और दूसरा हुकूमत को पैगाम दिया इस सारी सूरत हाल के अंदर कि आप जो है बाज आ जाएं, जो इस वक्त करप्शन की जा रही है हमारी, उसके ऊपर भी जो है वो भी नजर है। तो ये एक सारी चीज़ है कि हुकूमत जो है वो उसने एक बहुत बड़ा झूठ टर्न ले लिया है। इमरान खान को तो ये लोग फांसी देना चाहते हैं, उसका वजूद खत्म करना चाहते हैं, बयान उसके खिलाफ दिए जा रहे हैं, लेकिन आज ये फैसला हुआ कि हमने कल काबीना का इजलास नहीं बुलाना, उसमें कोई मामला ऐसा नहीं करना। यानी कि शहबाज शरीफ साहब इतना बड़ा फैसला लेने को तैयार नहीं हैं। अगर वो ये फैसला नहीं लेते तो फिर उनकी हुकूमत का आखिरी वक्त है, हुकूमत लड़खड़ा गई है और ये बाकायदा तौर पर इमरान खान से जो है माफिया मांग रहे हैं। बैकडोर्स पर तो हमें भी ये लोग बता रहे होते हैं कि जनाब हम ये सारा कुछ नहीं कर रहे, तो बड़े कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने इमरान खान से कुछ नहीं लेना। ये जिसके खिलाफ इमरान खान जंग लड़ रहे हैं वो सारा कुछ इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक पपेट के तौर पर जो है वो जनाब काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ तो ये, अब दूसरी जानिब जंग जो है वो बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गई, जंग बड़ी खतरनाक हो गई। अब जंग जनाब कैसे खतरनाक हुई है, अब ये जो सूरत हाल है कि DCI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आफ्टर शॉक्स आना शुरू हुए हैं और तहरीक इंसाफ ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, तबले जंग बजा दिया तहरीक इंसाफ ने। आज जनाब खुली जंग का ऐलान किया है, वो कैसे, वो मैं आपके सामने जनाब रख देता हूँ। DCI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मुकम्मल तफसीलात मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताई, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो जनाब आज की गई है उसमें बड़ा वाज़े पैगाम जो है वो दिया गया ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया और सियासतदानों की नाकामी पर, कि अदलिया रिलीफ क्यों दे रही है PTI को, सियासतदान नाकाम हो गए इमरान खान के खिलाफ। अब बात यह है कि अदलिया के खिलाफ की नाकामी और सियासतदानों की नाकामी, जब ये दोनों चीज़ें नाकाम हो जाएं और पाकिस्तान की फौज आकर कह रही है तो फिर आखिरी ऑप्शन क्या है, इमरजेंसी या मार्शल या PCO है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। और आप इसको लार्जर कॉन्टेस्ट में देखते हैं कि जब एक इदारा कह रहा है कि आप नाकाम हो गए, सियासतदानों को कह रहा है, वो अदलिया को जो है वो ठगे छुपे अल्फाज में आज पैगाम दे रहा था। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत जो है वो जनाब माफ़ी नहीं मिलेगी, ये भी जो है वो आज फैसला हुआ। अब जैसे DCI SPR जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी कमेटी का आम तरीन इजलास बुलाया। KPK हाउस में इजलास तलब किया जाता है और इजलास में मरकज़ी क़यादत जो है वो फिर आकर जब इजलास खत्म होता है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब बड़ी खतरनाक थी। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब उमर अयूब साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का बयानिया बनाया। वो कहते हैं कि DCI SPR ने बतौर फौज के तर्जमान ने बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बेनामी अकाउंट्स के बारे में पूछ रहे थे कि जिन बेनामी अकाउंट्स के आप बात कर रहे हैं वो है किसके,
वो जनाब करप्शन कौन कर रहा है, कौन बेनामी अकाउंट्स के ऊपर पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भिजवाता है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस है। गद्दारी साहब ओपनिंग ग्रुप के जरिए जो काम कर रहे थे, ये अपने चपरासी के जरिए अपने जनाब नौकरों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। तो पता तो करें मनी लॉन्डर्स है कौन। उन्होंने बेनामी अकाउंट्स की बात तो कर दी है, जिसके लिए अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग करती थी और उसमें नाम आसिफ गद्दारी का आता था। तो उमर यूब साहब ने कहा कि पता तो करें, और फिर उन्होंने कहा कि DCISPR को बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 7 के तहत रियासत का एहतराम करें। आप रियासत का एहतराम नहीं कर रहे। आर्टिकल 7 क्या है? वो कहते हैं कि तमाम इदारे बशमूल फौज आर्टिकल 7 के तहत रियासत के मतहत होते हैं। और DCISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी हुकूमत की नाकामी, बड़ी आम बात नहीं है कि जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो अदलिया की नाकामी की बात भी करती है, उन्होंने सियासतदानों की नाकामी की बात करती है। तो ये लोग नाकाम हो गए हैं, तो फिर आज फौज को जो है वो आगे सामने आना पड़ा है, उनको जनाब जवाब देना पड़ा है। तो ये आर्टिकल 7 के खिलाफ जो है वर्जी की जा रही है बकौल उमर अयूब के। असद कैसर साहब इसके ऊपर बात करते हैं कि शहबाज शरीफ तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, जितना करोगे उससे 2 गुना करेंगे। जंग तुमने शुरू की है और तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे। असद कैसर साहब ने बड़ी खुल्लम खुला धमकी दे दी है। शौकत बसरा साहब ने बड़ी आम बात की, जो DCISPR ने कहा कि तेल की स्मगलिंग से रोजाना करोड़ों रुपए जो है वो कमाया जाता है। अब ये लोग स्मगलिंग कौन करता है, ये सवाल बड़ा आम है कि स्मगलिंग कौन करता है, करोड़ों रुपए कौन कमाता है, भत्ता कौन लेता है। शौकत बसरा ने इसका जवाब दिया। वो कहते हैं कि स्मगलिंग करता कौन है, जबकि बॉर्डर पर तो फौज होती है, फिर कैसे फौज के होते रोजाना करोड़ों की स्मगलिंग हो जाती है। बड़ा आम सवाल उन्होंने किया कि वो जो कह रहे हैं कि तेल की स्मगलिंग हो रही है, तो स्मगलिंग दायरा बॉर्डर्स के जरिए होती है ना, तो बॉर्डर्स पर तो फौज खड़ी है, फौज की प्रेजेंस में वहां पर करोड़ों रुपए की तेल की स्मगलिंग हो कैसे रही है। और वैसे भी DCISPR ने कहा कि जब तक हम ना चाहें कोई भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, ना अंदर आ सकता है। तो फिर ये कैसे सब मुमकिन है कि आप नहीं चाह रहे फिर भी स्मगलिंग हो रही है, या आपकी नाकामी है या आप लोग इसमें मुलविस हैं। बेसिकली शौकत बसरा साहब जो है वो ये बात करना चाह रहे हैं कि तेल की स्मगलिंग कर कौन रहा है। एक ये बड़ी अहम जनाब उन्होंने बात की है। फिर उमर अयूब साहब कहते हैं कि सिगरेट, डीजल, दिगर अशिया की स्मगलिंग हो रही है। क्या बॉर्डर पर पटवारी स्मगलिंग करवा रहे हैं? कौन स्मगलिंग करवा रहा है? पटवारी करवा रहे हैं, कौन करवा रहे हैं? ये बड़ी आम बात जनाब उन्होंने कर दी है। तो ये चीज़ें बड़ी आम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुला जंग का ऐलान कर दिया उन्होंने कि जो आज इल्ज़ामात लगाए हुए थे, DCISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने सबूत के साथ आज PTI ने उनको जवाब दिया है, जिसके बाद अब ये जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। और फिर जनाब इस पर हाफिज़ नईम रहमान साहब ने रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि तर्जमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम करते हैं कि इसमें इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं है, फौजी ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होते और ना ही मुल्क किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल हो सकता है। हुकूमत अगर मुशावरत से फैसला करेगी तो कन्फ्यूजन जन्म नहीं लेगी। यानी कि जमात इस्लामी जो है वो तो मान गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपोज करे कि जनाब हम इस ऑपरेशन को जो है वो नहीं होने देंगे। तो लेट्स सी कि मामला किस जानिब जाता है। मैंने आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रख दी हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना आज़मी खैर के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।